Hare Krishna. Thank you very much, Prabhuji. So we welcome all, and we'll just start with Jai Radha Madhava. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Giridharadhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Giridharadhari. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Giridharadhari. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Radha Bhari Nisha Radha Bhari Nisha Radhe. Jai Radha Hare Krishna, Radha Hare Krishna, Radhe. Jai Radha Shyama Sundar Radha Shyama Sundar Radhe. Jai Radha Shyama Sundar Radha Shyama Sundar Radhe. Jai Radha Murlidhar Radha Murlidhar Radhe. Jai Radha Murlidhar Radha Murlidhar Radhe. Jaya Jagannath Jaya Jagannath. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath. Jai Baladeva Jaya Subhadra. Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Vrindavan Dham. Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Vrindavan Dham. Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Panchatattva Jaya Panchatattva Jaya Panchatattva Jaya Panchatattva. Jaya Panchatattva, Jaya Panchatattva, Jaya Panchatattva, Jaya Panchatattva. Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। भगवद गीता की सत्संग में आप सभी को स्वागत है। धन्यवाद करते हैं टेंपल मैनेजमेंट को जिन्होंने हमें ये सेवा का अवसर दिया। श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षा को प्रभुपाद के मार्गदर्शन में समझने का और जीवन में उतारने का अभ्यास हम कर रहे हैं। इस समय भगवद गीता की 4था अध्याय का वर्णन और श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। तो भगवद गीता का जो अध्ययन है वो तत्वदर्शी गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। ऐसे में ये समझने के लिए कई बातें हैं कि किसी तत्वदर्शी गुरु की शरण क्यों लेनी चाहिए। उनमें से एक बात यह है कि भगवद गीता का अध्ययन करते समय हमें कोई विरोधाभास देखने को मिलेगा। जब यह
अलग अलग अध्याय में होता है, तो हम उन्हें याद नहीं, मतलब वो हमें याद नहीं रहता और इसलिए ध्यान भी नहीं देते। लेकिन आज का श्लोक पिछले श्लोक के विपरीत है। पिछले श्लोक में हमने देखा श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं। लेकिन आज का श्लोक में भगवान कह रहे हैं यद्यपि मैं अजन्मा हूं, अगर अनेक अनेक जन्म हुआ है तो अजन्मा कैसे? आइए इसे हम प्रभुपाद की मार्गदर्शन में समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले भगवान को हम प्रार्थना कर लेते, हमारे ऊपर कृपा करें, उनके वाणी को पढ़ सके, समझ सके और जीवन में उतार सके। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हम अध्याय 4 दिव्य ज्ञान योग श्लोक संख्या 4-6 हम पढ़ रहे हैं। अजोपि सन अव्ययात्मा अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। संभवामि आत्ममायया। अजोपि सन् अव्ययात्मा अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। संभवामि आत्ममायया। अजोपि सन् अव्ययात्मा अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। संभवामि आत्ममायया। तो जैसा हमने बोला था कि आज जो भगवान कह रहे हैं कि अज अपि, मतलब मैं अजन्मा हूं तथापि, और उसी के ऊपर हम आज देखेंगे। तो प्रभुपाद पहले हम देखते हैं प्रभुपाद भावार्थ में क्या लिखते हैं। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान ने अपने जन्म के आज का जो है, हरे कृष्ण, आज का जो है तात्पर्य थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम पढ़ते हुए हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आइए तात्पर्य पढ़ने से पहले भगवान और गुरु परंपरा से कृपा याचना कर लेते हैं। उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सह गण ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान ने अपने जन्म की विलक्षण बतलाई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष के भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेक अनेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य पुरुषों को कुछ ही घटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे उसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वो कल इस समय क्या कर रहा था। ये बहुत ही ज्यादा सच है। कुछ लोगों को तो ये याद ही नहीं रहता कि उन्होंने कल क्या खाया था और क्या कहे कि वो एक खास समय पर क्या कर रहे थे। और यहाँ भगवान कितने दिन की बात कर रहे हैं, मतलब कितना दिन पहले की बात याद दिला रहे हैं। जो लोग अच्युत गिरिधारी प्रभु का पिछले संडे को ध्यान से सुने होंगे उन्हें याद होगा, 12 करोड़ साल पहले की बात कह रहे हैं। और जिन्हें ये 12 करोड़ साल कैसे आया समझना है, तो इसी अध्याय का पहला श्लोक का तात्पर्य को आप पढ़िएगा तो प्रभुपाद विस्तार में लिखे हैं किस तरह से 12 करोड़ साल का है। और बाइबल में भी ये बताया गया है कि सो गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। जिनको बाइबल के थोड़ा बहुत ज्ञान है तो आप देखेंगे जेनेसिस 1:27 में इसको बताया गया है। अर्थात मानव देखने में भगवान जैसा ही है। ध्यान रखने वाली बात है, मानव देखने में भगवान जैसा ही है, भगवान मानव जैसा नहीं। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि मानव भी भगवान है। ठीक है, कैसा अर्थ? मानव देखने में भगवान जैसा है लेकिन मानव भी भगवान नहीं है। हिंदू शास्त्र के अनुसार ये भवसागर का जो ये भवसागर है एक कारागार है। कारागार में कैदी और जेलर दोनों रहते हैं, है ना। सो वो एक जैसे देखते हैं। वो जेल से बाहर जाने और वापस आने के लिए सरकारी वाहन का ही इस्तेमाल करते हैं। तो क्या कैदी और जेलर समान है? नहीं। कोई अगर ऐसा सोचता है उससे क्या कहेंगे? आगे प्रभुपाद क्या लिखते देखते हैं। फिर भी लोग प्राय अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं।
मनुष्य को ऐसे निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। कौन भ्रमित होता है, ये समझने वाली बात है। जो इस तरह से लोग अपने आप को ईश्वर घोषणा कर लेते हैं और लोग उनको समर्पित होते हैं, तो कौन भ्रमित होता है? जिन्हें ठीक से जानकारी नहीं है। मान लीजिए आप गुजराती हो, आप आम रस बनाना चाहते हैं और आप सेंट्रल मार्केट से अल्फोंसो आम खरीदने जाते हैं। दुकानदार आपको बादामी आम देता है, क्या आप लाएंगे? नहीं लाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अल्फोंसो आम से आम का रस अच्छी तरह से निकलेगा, इसलिए आप अल्फोंसो आम ही लाएंगे। बादामी आम को अल्फोंसो आम के रूप में अगर दुकानदार आपको देता है या आपको भ्रमित करता है कि भाई ये अल्फोंसो आम है, ले लो, आप उसकी बात में नहीं आएंगे, आप भ्रमित नहीं होंगे, क्योंकि अल्फोंसो आम क्या है इसे पहचानने के लिए आपके पास सही ज्ञान है। एक उड़िया व्यक्ति जो आमरस बनाने की प्रक्रिया नहीं जानता है या आमरस के स्वाद की अच्छी तरह से परिचिति नहीं है, उसको तो आम खाने में बस मतलब है, तो वो बादामी आम को साथ वापस आ सकता है और कह सकता है कि सभी आम समान है। इसी तरह जिन लोगों को भगवान के बारे में सही ज्ञान नहीं है, जो शास्त्र को बिल्कुल नहीं पढ़ते या तत्वदर्शी गुरु की शरण में नहीं लेते हैं, वो भ्रमित हो जाते हैं। वे कहते हैं कि सभी समान है, सभी भगवान है, आप भगवान हो, मैं भगवान हूं, सभी भगवान है। ये ऐसा ही बात है जैसा कोई कहता है कि कैदी और जेलर समान है कि नहीं? दूसरा चीज रिलेटेड तो इसमें नहीं है, लेकिन ये बात आई तो मुझे ध्यान आ रहा है कि लोग पूछते हैं कि कृष्ण ऐसा कैसा कर सकते हैं। भगवान, चलो मान लेते थोड़ी देर के लिए कृष्ण भगवान मान लेते और पूछते कृष्ण ऐसा कैसा कर लेते। भाई वो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि जेलर और कैदी एक ही परिसर के भीतर है, जो जेल का परिसर के अंदर वो दोनों हैं। क्या कैदी पर लागू नियम जेलर पर भी लागू होता है? नहीं ना। इसे केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है, मूर्ख नहीं। इसी तरह हमारे लिए लागू नियम कृष्ण या उनके प्रतिनिधि पर लागू नहीं होते हैं। फिर आगे प्रभुपाद क्या लिखते हैं देखेंगे। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते हैं। इसको ध्यान देने वाली बात है ये, क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद भगवान का प्रकट होना, आदमी में जन्म होना में क्या फर्क समझा रहे हैं। इसी जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वो एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है, किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। एक शब्द में अगर कहेंगे कि जन्म होना अर्थ क्या है? शरीर परिवर्तन करना। लेकिन भगवान क्या करते? आगे बढ़ते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वो सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं, किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। क्या सही बताया प्रभुपाद ने, है ना। यहाँ
ध्यान देने वाली बात यह है, हमें प्रतीत होता है भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान ऐसा करते हैं, लेकिन बालपन में भी उनमें उतना ही ज्ञान रहता है, उतना ही शक्ति रहती है। नहीं तो 3 दिन का एक बालक क्या पूतना जैसे राक्षसी को मार सकता था? और ज्ञान के बारे में हम यहाँ देख ही रहे हैं, वो उस घटना के बारे में बात कर रहे हैं जो 12 करोड़ साल पहले हुई थी। रामायण के अंदर अगर हम झांक के देखें तो जहां लीला विस्तार हेतु भगवान श्री राम माता खो जाने पर विलाप कर रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे? विलाप करते हुए लता, वृक्ष, पक्षी, जानवर सबसे पूछ रहे थे, कोई उनकी पत्नी को देखा है क्या? अति करुण दृश्य था। भगवान शिव ने इसको देखा तो उन्होंने प्रणाम किया, लेकिन माता पार्वती को विश्वास नहीं हुआ कि भगवान लीला कर रहे हैं। भगवान की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने माता सीता का रूप धारण किया और मार्ग में ही खड़ी हो गए। तुरंत ही भगवान ने माता की, जो पार्वती माता जो खड़ी हुई थी सीता माँ का रूप लेके, उन्होंने उनका कुशल मंगल पूछा और भगवान शिव के बारे में जानना चाहा। माता बिल्कुल चौंक गई। लीला विस्तार के लिए भगवान कृष्ण हमें प्रतीत कराते हैं कि वो बालपन से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं, लेकिन युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते, कारण भक्तों को पसंद नहीं आएगा। जब लोग बूढ़े होना पसंद नहीं करते तो भगवान को बूढ़े देखकर वो कैसे सहन कर सकते हैं? इसलिए भगवान युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। आगे प्रभुपाद क्या लिखते हैं, देखते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पुत्र थे, या दूसरे शब्द में वो भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे, फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसा लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वो तीनों काल में, भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष है। ना तो उनके शरीर और ना ही बुद्धि कभी क्षीण होती है या बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि इसी जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया, और जब वो हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि वो क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य के उदय और अस्त होने परिकल्पित करते हैं। यहीं पर प्रभुपाद समझा रहे हैं कि भगवान कैसे अजन्मा है। ये समझ गए तो हम समझ जाएंगे भगवान कैसा अजन्मा है। प्रभुपाद हमें सूर्य के उदाहरण से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अपनी अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण इंद्रिय के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होने परिकल्पित करते हैं, अर्थात हम कल्पना करते हैं। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, वो कहीं नहीं घूम रहे, है ना। वैसे ही सूर्य का तापमान हमेशा अपने स्थान पर समान रहता है। कभी सूर्य, लेकिन हमें कैसा प्रतीत होता है कि सुबह ये सुखदायक होते हैं,
लेकिन दोपहर को बहुत गर्म है कि नहीं? क्या सूर्य ग्रह में तापमान में कोई परिवर्तन होता है? नहीं होता है। लेकिन जो हमें अनुभव करते हैं, हमें जो अनुभव आता है वो भी सही है। सुबह हमें सूर्य किरण मतलब जो है ना सुखदायक रहता है, और दोपहर को जो ना गर्मी से हम कांप जाते हैं। यहाँ पर मुद्दा ये है, हम जो अनुभव करते वास्तव में वो सच नहीं है। सूर्य उदय और अस्त नहीं होते, और उनके तापमान भी कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक वैसे ही भगवान जन्म नहीं होते, वो अपने शाश्वत शरीर में प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं। लेने का अर्थ ये है कि जो हमने अभी पढ़ते हुए प्रभुपाद का जो परपोट पढ़ते हैं, उस समय हमने देखा कि जन्म होने का अर्थ क्या है, कि वो शरीर, नया शरीर ग्रहण करना। लेकिन भगवान जो है वो नया शरीर नहीं ग्रहण करते, वो अपने ही शाश्वत शरीर में प्रकट होते हैं। जन्म लेने का अर्थ एक नया शरीर ग्रहण करना है, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते, और शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भी भूल जाता है। किंतु कृष्ण सस्मरण रखते हैं, क्योंकि वो अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। स्पष्ट है ना? आगे प्रभुपाद क्या लिखते देखते हैं। और क्योंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीवों के भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत है, अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप है, और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होते। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूप में अवतरित होते रहते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। यह स्पष्ट है ना? लिखते हैं प्रभुपाद क्या लिखते हैं। श्रीमद् भागवतम में भी अपने माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा षडेश्वर में युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आद्य शाश्वत रूप में प्राकट्य उनकी अहित की कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वो भगवान के यथारूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके, ना कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्मों या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। इस संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं, अगले श्लोक में भगवान उसकी कारण बताएंगे, और प्रभुपाद भी उसका विस्तार भी करेंगे। लेकिन प्रभुपाद यहाँ भी संकेत दे रहे कि भगवान क्यों प्रकट होते हैं। संभवामी आत्म माया, स्पष्ट है ना? आगे प्रभुपाद क्या लिखते हैं देखेंगे। विश्वकोश के अनुसार माया या आत्म माया शब्द भगवान की अहेतु की कृपा का सूचक है। तो भगवान अहेतु की कृपा के कारण वो आते हैं। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरोभाव से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है, वो अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। ये अच्छा है कि बुरा है? जो पिछले जन्म का बात भूल जाना। खैर हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक, तो हम आगे बढ़ते हैं। वे समस्त जीवों की स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए भी आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परमात्मा रूप में और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या अनेक गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। तो ये भी बड़ा क्लियर प्रभुपाद ने बता दिया। अब यहाँ प्रश्न किया जा सकता है कि इसी संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है।
तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त होती है। कोई प्रश्न और टिप्पणियां हैं क्योंकि 5 मिनट रह गया। नहीं तो थोड़ा हम क्या देखें, अभी आज का और पिछला श्लोक में देख लेते हैं। आज की तात्पर्य और पिछले श्लोक की तात्पर्य में प्रभुपाद हमें यही समझा है कि यद्यपि भगवान सामान्य पुरुष के भांति प्रकट होते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेक अनेक जन्म का पूर्ण स्मृति बनी रहती है और भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो कभी भी भगवान का समान नहीं हो सकता। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है। ये सारे चीज प्रभुपाद ने क्लियर किया। फिर आगे भी भगवान श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत रूप में 2 भुजाओं वाले बांसुरी धारण किए अवतरित होते। तो हमने इसका ऊपर भी ध्यान दिया था कि भगवान का जैसा मानव होता है, मानव के जैसा भगवान नहीं अवतरित होते हैं। ये इसको ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इस जब हम उल्टा सोचते हैं तो हमारे सारे चीज उल्टे हो जाते हैं। हम जब जो सही है उस तरह से हम सोचने लगेंगे, समझने लगेंगे, तो हमको सब कुछ सही से दिखने लगेगा। और हमें कोई उल्टा समझाने के लिए कोशिश कर रहा था, हम उसके बातों में नहीं आएंगे। दूसरा चीज हमने ये भी देखा कि यद्यपि अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वो सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। इसके लिए कि हम सोचते भगवान हमारे जैसा आ रहे हैं, तो इसके लिए हमें ऐसा लग रहा है। लेकिन भगवान क्यों आते हैं कि इससे भगवान का यथारूप में जीव अपना ध्यान केंद्रित कर सके। नहीं तो जो मनोधर्मी जो है उनके जैसा वो भगवान निराकार है, बल्ब है, लाइट है, ये सारे चीज में हमको लोग ध्यान करने लगा देते हैं, है ना। ये जो भगवान प्रकट होते हैं, ये भगवान की अहेतु की कृपा का सूचक है, जो आत्म माया जो हमने श्लोक में देखे। और ये भी समझाया कि भगवान अद्वित होते हुए भी भगवान असंख्य रूप में प्रकट होते हैं, तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। वो अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। यही मेरा समझ है। हरे कृष्णा। प्रेममय गोपेश प्रभु, बैक टू यू। हरि बोल। हरे कृष्ण। माता जी प्रणाम।